Good evening, everyone. Good evening, sir. Thank you, everyone, for giving time on this beautiful Sunday. Namaste. Warm welcome to everyone. It gives me immense pleasure to welcome you all for today's free webinar on Chikitsa Tri Sangam, the art of prescribing Ayurveda medicines. As you all have gone through the poster, we know that this Chikitsa Tri Sangam is about three different chikitsa chikitsa pranali that run across India. That is, खड़ा क्यों वायर तेरे? I request everyone to just keep your mics on mute. I'll keep everyone on mute so that there is no disturbance during the recordings also. Okay. So this in this webinar, we are going to learn about three great streams that we can use for approaching any disease, approaching any cases that comes to our OPD. One is the classical Ayurveda, Tridosh Siddhant that we use. Second is the Panchabautik Chikitsa. And third is the traditional Keralian medicines that we use for our patients. So today we have privilege of learning from one of the most respected teachers and clinician in the field of Ayurveda, Vaidya Dr. Aniruddha Kulkarni sir. Dr. Kulkarni sir has been serving patients through Ayurveda for more than 34 years. He is dedicated disciple of legendary Vaidyaraj Atmaram Datar Shastri ji, under whose guidance he mastered the principles and clinical applications of Panchabautik Chikitsa. Throughout his distinguished career, he has presented multiple research papers at national and international conferences. He has delivered hundreds of lectures and workshops across India and abroad, including UK and Europe. He has authored several books on Ayurveda and Panchabautik Chikitsa. He has also trained thousands of Ayurveda physicians through different seminars, online courses, and clinical workshops. Continues to inspire the Ayurveda fraternity through his teaching, research, and lifelong commitment to preserving and advancing authentic Ayurvedic knowledge. In today's session, Dr. Kulkarni sir will introduce us to the concept of Trisangam Chikitsa, where the wisdom of clinical Ayurvedic, Panchabautik Chikitsa, and traditional Kerala medicine comes together. More importantly, he will guide us on how to choose the right medicine at the right stage of the disease, transforming theoretical knowledge into practical clinical wisdom. I request all the participants to keep yourself ready. Don't get engaged in other work and make the most of this unique learning opportunity, which will be presented by Dr. Anirudh Kulkarni sir. Today, also, he will be telling us, giving some insights on Aruchi and Adman, which we frequently see in our OPD, or which we can say it is a Agnimandya, which is the root cause of any disease. So he will be giving us a brief insight of Chikitsa Tri Sangam in these two symptoms. So, with great respect and gratitude, let us welcome our esteemed speaker, Vaidya Aniruddha Kulkarni sir. Sir, we are deeply honored to have you with us. The virtual stage is all yours, and we will continue the meeting only in Hindi language. Good evening, sir. Namaskar, sir. नमस्ते। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबको मेरा प्रणाम है। और सबसे पहले IIAS डॉक्टर ललित, डॉक्टर मंजू, जो ये वेबिनार, अलग अलग प्रकार के कोर्सेस, अलग अलग प्रकार के लेक्चर्स आपके लिए लाते रहते हैं। और इसकी ज़रूरत भी यह है कि क्योंकि आयुर्वेद जो शास्त्र है वो बहुत ही गहन शास्त्र है, और इसीलिए हम जिस तरीके से, जितने भी पद्धति से और जिन जिन विचारधाराओं से सीख सकते हैं,
उनसे हमें जरूर सीख लेनी चाहिए। और हमारा जो एक सेटअप है, हम जहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, हम जैसे जिस गांव में, शहर में, आप कहीं पर भी प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ पे उसका सबसे अच्छा उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हमें सदैव सोचते रहना चाहिए। ये इस व्याख्यान की शुरुआत में मैं भगवान श्री धन्वंतरी और संत कुल शिरोमणि श्री ज्ञानेश्वर मावली और मेरे गुरु वैद्य आत्माराम वामन दातार शास्त्री, इनको मैं प्रणाम करता हूँ, इनके आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ। और आप सभी को भी मैं, मेरी ओर से प्रणाम। और मैं मेरा स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये कंसेप्ट क्या है और किस तरह से हम ला सकते हैं, ये मैं देख बोलता हूँ। तो क्या आप सबको मेरा स्क्रीन भी दिख रहा है और मेरी आवाज भी आ रही है? यस। Yes, sir. शुड आई कंटिन्यू? यस। हाँ। तो त्रिसंगम चिकित्सा, द आर्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो लेट अस स्टार्ट। देखिए, आयुर्वेद चिकित्सा एक बहुत ही अ, Not open, sir. हाँ। Yes. Sir, please make it full screen. Right, sir. It is okay यस सर। now. Yes, यस sir. सर। यस। आयुर्वेद चिकित्सा इज मेजॉरिटीली वी आर टॉकिंग अबाउट दी काय चिकित्सा। और काय चिकित्सा के बारे में जब हम बात करते हैं, तो काय इति अग्नि, और अग्नि की चिकित्सा, अग्नि को साम्यावस्था में लाना, ये सब इसको ही चिकित्सा कहते हैं। या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धातवा समाह, सा चिकित्सा। तो इसको चिकित्सा करते हैं। सभी शरीर के धातुओं को, सभी शरीर के दोष, धातु, मल, इनको साम्यावस्था में लाना, इसको चिकित्सा बोलते हैं। और ये चिकित्सा जिन क्रियाओं के आधार पर, जिन क्रियाओं की मदद से की जाती है, वो इंपॉर्टेंट है, वो हमारे चिकित्सा के साधन है। दीज आर द टूल्स ऑफ आवर ट्रीटमेंट। और हम ट्रीटमेंट किस तरह से प्लान करते हैं, ट्रीटमेंट किस तरह से हम उसके बारे में सोचते हैं, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। आपको पता है 5,000 साल से आयुर्वेद चला आ रहा है। तो आयुर्वेद में बहुत सारे अ, वैद्यों ने बहुत सारा काम किया हुआ है। और ये जो पूरा भारतवर्ष है, खास करके उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत, ऐसा हम ब्रॉडली इसको कह सकते हैं। पूर्व भारत और पश्चिम भारत के लोग मुझे माफ कीजिए, लेकिन वो इसमें इसमें भी आते हैं। तो ये जो तीन विभाग हम देखते हैं, तो उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत, तो यहाँ पर भी बहुत सारे, अगर हम जितना इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास के बारे में देखेंगे, तो हमको ये पता चलेगा कि ये आयुर्वेद, ये तीनों पद्धति में, तीनों जगह पर ये आयुर्वेद था। और आयुर्वेद के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, बेसिक जो ट्रीटाइज जिसको संहिता बोलते हैं हम, तो वो इन सब को अकोमोडेट करती है। यानी कि सभी जगह को, तीनों पूरे भारतवर्ष को अकोमोडेट करके ये संहिताएं हमारे लिए उपलब्ध है। और इसीलिए इस विशाल और अथांग भू भाग के कारण वहाँ का सबसे बाकी का भी बहुत सारा वातावरण जो है, वनस्पतियां है,
जो पर्यावरण है वो उसमें भी बहुत सारे बदलाव हैं। यानी कि जो उत्तर में जाते हैं तो वहां पे हिमालय जैसे बर्फीले पर्वत है, और दक्षिण में आते हैं तो वहां पे 3 समुद्र है। तो ये सभी इतना सब कुछ हमारे भाग में है, और इसीलिए बहुत सारी औषधि वनस्पतियां, बहुत सारे औषधि पदार्थ भारतीय लोगों ने उसमें खोजे, वैज्ञानिकों ने, और उनका उपयोग किया हमारी चिकित्सा के लिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए डिफरेंट मेडिसिनल ट्रेडिशंस भी निर्माण हुए। होता यह है कि हम पढ़ते हैं संहिता, हम ये कहते हैं कि बृहत्त्रयी है, लघुत्रयी है, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, ये हमारी सबसे वंदनीय संहिताएं हैं। और उसके बाद में जो संग्रह संहिताएं हैं, जैसे कि भाव प्रकाश है, माधव निदान है, योग रत्नाकर है, जिनको हम लघुत्रयी बोलते हैं। तो ये अगर हम पढ़े तो उसमें होता हो ये रहा है कि हम चरक, सुश्रुत, वाग्भट, हम जितना उनकी संहिताओं को पढ़ते हैं, जब चिकित्सा का वक्त आता है तो उसमें से बहुत कम चीजें हम यूज करते हैं। ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये ऐसा है, लेकिन ये फैक्ट है कि संहिताओं में वर्णित जो कल्प है वो आजकल बहुत कम मात्रा में हम वैद्यगण यूज करते हैं। बहुत सारे हैं लेकिन बहुत कम है। और ज्यादा कल्प कौन से यूज होते हैं? ज्यादा कल्प होते हैं यूज जो संहिताओं के बाद के साल में आए, और जो कुछ सालों से, कुछ सैकड़ों वर्षों से हमारे प्रैक्टिस में है, या हमारे जो परंपराएं हैं, जो ट्रेडिशन है चिकित्सा की, उनके प्रैक्टिस में जो जो कल्प है, वो कल्प हम यूज करते हैं। और संहिताओं से हम उसका बेसिक सीखते हैं कि दोष धातु मल क्या है, स्वास्थ्य क्या है, निदान क्या है, व्याधि क्या है, चिकित्सा क्या है, चिकित्सा की जो संप्राप्ति है, चिकित्सा करने के लिए संप्राप्ति भंग करना आवश्यक है, तो संप्राप्ति भंग कहाँ से कैसे किया जाता है। तो ये जो सब चीजें हैं, ये चीजें हम संहिताओं से लेते हैं। जो इसका एक बेसिक ढांचा है, एक कंसेप्चुअल चीजें हैं, वो हम उसके लेते हैं। लेकिन हम उनके लिए जो दवाई यूज कर रहे हैं, जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज हम यूज कर रहे हैं, वो हम धीरे धीरे मॉडर्नाइज हो जाते हैं, या उस काल में उसको उसमें शोधन करके उस काल के अनुसार हम करते हैं। देखिए आजकल आप सब शिरोधारा, बहुत सारे अभी 80-90% लोगों के यहाँ शिरोधारा ये ऑटोमेटिक मशीन बैठा हुआ है ना। तो ये बातें सब कुछ है, बहुत सारी चीजें होती है उसमें। स्वेदन करने के इतने 23 प्रकार हम हमारे यहाँ पता है कि अग्नि स्वेद है, निरग्नि स्वेद है। लेकिन मतलब उसमें से हम चिकित्सा में कितना यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, तो ये बातें हमें होती है। क्योंकि प्रैक्टिकली हम बहुत अलग सी सोच रखते हैं, अलग सी चीजें रखते हैं। और इसका भी एक कारण है, मैं आपको बताता हूँ कि थेरापेटिक श्योरिटी अबाउट मेडिसिन, ये एक बहुत बड़ा कारण है। जैसा मैंने मतलब जब मैं विद्यार्थी था, 1986 में मैंने आयुर्वेद में एडमिशन लिया। 40 साल इस जून जुलाई में पूरे होंगे। 40 साल मैं आयुर्वेद में काम कर रहा हूँ, आयुर्वेद का अध्ययन कर रहा हूँ। तो जब आयुर्वेद की चिकित्सा करने की नौबत आती है, या आयुर्वेद की चिकित्सा के लिए कल्प द्रव्य, भले आप एकल द्रव्य यूज करो या कल्प यूज करो, वो कौन से भी डोसेज फॉर्म में आप यूज करो, यानी कि आप स्वरस यूज करो, कल्क यूज करो, वटी, गुटी, आसव, अरिष्ट, घृत, तैल, मलहर, जो भी आपको यूज करना है, कौन सा भी डोसेज फॉर्म है, उसमें एज ए स्टूडेंट हमको ये प्रॉब्लम होती है कि ये कहाँ पे उसका रेफरेंस है, और ये हम यूज करने के बाद हमको श्योर उसके रिजल्ट मिलते हैं क्या। ये एक बहुत सारे कल्प हम पढ़ते हैं ना। जैसा मैं हर हर बार कहता हूँ, सभी स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि योग रत्नाकर हमारा ग्रंथ है। रत्नाकर है, योगों का रत्नाकर है। समुद्र जैसे बहुत सारे हजारों कल्प उसमें हैं।
उसमें से एक उठा के, या उन्होंने जहां पर उसकी जो इंडिकेशंस लिखे हैं, रोगग्नता लिखी है, हर एक कल्प के बाद उसकी रोगग्नता लिखी होती है। तो वो रोगग्नता लिखने के बाद हम उसको आंखें मूंद करके उस कल्प को बना के या उसको कल्प को उठा के उसमें देंगे क्या? नहीं दे सकते। क्योंकि हमको ये लगता है कि अगर हमने ये देखा ही नहीं है कि ये कल्प काम करता है कि नहीं, या कैसे काम करता है। ये शेयर बंद हुआ क्या? ओ, मेरा भी आपने कर दिया क्या? हेलो। Yes, sir. You have to reshare again. ओके। बता रहे हो। ओके। हाँ ठीक है, आ गए ना? दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? कैन यू सी माई स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, sir. सर। यस यस, ओके ओके। तो ये श्योरिटी जो है कल्प की या मेडिसिन की, ये हमें लाती है कि हम किसी वैद्य के पास जाए, या हम किसी मतलब जहाँ पे हम सीख लेते, कॉलेज है या कहीं पर भी है, या फिर हमारे सहाध्यायी होते हैं, कलीग्स होते हैं, जूनियर सीनियर्स होते हैं, या कुछ हम जैसे अभी वेबिनार से, सेमिनार से, कॉन्फ्रेंस से उसमें हम पढ़ते हैं। तो या किसी अच्छे वैद्यों से, उनके अनुभव से हम कुछ कल्पों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब ये प्रोसेस है। और इसीलिए ये थेरापेटिक श्योरिटी, ये कल्प हमें यश देगा क्या, या उसमें उपयोगी होगा क्या, ये समझने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और तीसरी बात है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द मेडिसिन। देखिए, जिस परंपरा से मैं आया हूँ, वैद्यराज दातार शास्त्री जी के, तो वहां पे तो हमने अपने कल्प खुद को बनाने हैं, ये हमने हमारे शुरुआत के दिनों से सीखा है। लेकिन मुझको ये भी पता है कि हर कोई हर एक कल्प नहीं बना सकता। और दूसरी भी बात है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इतने बड़े भूभाग में, इतने बड़े अ, देश में, या इतने बड़े विश्व में हर एक वनस्पति या हर एक चीज सभी जगह पे उपलब्ध होना नामुमकिन है। तो वो चीजें कहीं से आती है, वो चीजें वहां से आती है। तो कुछ कुछ जहाँ पे जो चीज हमको अधिक मात्रा में मिलते हैं, वहां पे हम उस चीजों के आधार पर अच्छे मेडिसिन बना लेते हैं। लेकिन अगर कभी हमको जरूरत पड़े कि हमको जटामौसी चाहिए, समझो मैं अभी महाराष्ट्र में काम करता हूँ, तो महाराष्ट्र में जटामौसी कहीं पे नहीं मिलेगी, आपको कहीं पे उगेगी ही नहीं। तो वो तो हिमालय से लानी पड़ेगी, ठंडे प्रदेशों से लानी पड़ेगी। तो ये चीजें होती है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द मेडिसिन, ये होता है आप खुद सब कुछ नहीं बना सकते। और दूसरा ये है कि अगर हम कोई पेशेंट आता है और हमको ये लगता है कि इसको ये कल्प बना के देना चाहिए, ये कल्प करना है, तो वो पेशेंट की अवस्था में अगर हम वो कल्प बनाने के लिए ले, तो वो बनेगा कब, और उसको हम देंगे कब, और वो ठीक होगा कब। तो ये सब चीजें जो इसमें रहती है, तो ये इसके कारण हम जो मेडिसिन हम खुद बनाते हैं, और जो हमारे साथ इजीली अवेलेबल हो सकते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल है, जो अच्छी कंपनियां बनाती है, या अच्छे स्टैंडर्ड्स के कल्प हमको मालूम है, वो अवेलेबल होने चाहिए। ये हमारे चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस सीरीज? ये हम सीरीज करने वाले हैं। और त्रिसंगम का अर्थ क्या है? तो दिस सीरीज इज डिजाइन टू हेल्प अस पिक द राइट मेडिसिन फ्रॉम these थ्री traditions and apply it at right stage of disease। तो इसमें देखिए, ये थ्री ट्रेडिशंस है, राइट स्टेज ऑफ डिसीज है। तो किसी भी जो व्यक्ति, कोई भी पेशेंट हमारे सामने आता है, हमारे समक्ष आता है, हमारे लिए, हमारे को ट्रीटमेंट के लिए आता है, तो ही इज इन सम काइंड ऑफ स्टेज की, वो रोग की किसी अवस्था ही में होता है। और वो अवस्था को समझना, उस अवस्था को एनालाइज करना, उस अवस्था तक ये रोगी किस तरह से आया है, इसके बारे में सोचना, यानी कि उसकी संप्राप्ति लगाना,
और उसके बाद में उस संप्राप्ति को कहाँ पर हम भंग कर सकते हैं और कैसे भंग कर सकते हैं और किस क्रिया से, चिकित्सा क्रिया से भंग कर सकते हैं, ये सोचकर वहां पे उस क्रिया को, उस कल्प को यूज करना। ये इतनी बातें, इसमें जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, वो जितना आसान तरीके से आपको मैं बता ना सकूं, मैं बताने की इस सीरीज में कोशिश करूंगा। ये त्रिसंगम है। संगम का अर्थ होता है कि जहां तीनों चीजें एक साथ मिलती है। ये नदियों के बारे में कहा जाते हैं, जो नदियों के संगम होते हैं, है ना। तो वहां पे ये संगम होता है। संगम का अर्थ ये है कि वो जब मिलने से पहले वो अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन मिलने के बाद सब कुछ एक हो जाता है। उसी तरह हमारा आयुर्वेद के सभी ट्रेडिशंस है कि वो अलग अलग हमको दिखते होंगे, लेकिन उनका जो हार्ट है, उनका जो आत्मा है, वो आयुर्वेद के बेसिक सिद्धांत है। और वो आयुर्वेद की दृष्टि से, जिस दृष्टि से हम आयुर्वेद को हम समझते हैं, हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वस्थातुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुधेयम पितामह। हेतुलिंग औषध हो, या सब दोष धातु मलमूलम ही शरीरम हो, सर्वद्रव्यम पांचभौतिकम अस्मिन्नार्थे हो। मतलब ये सभी चीजें हमको ये बताती है कि आयुर्वेद के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, वो बेसिक प्रिंसिपल्स को हमको जितना अच्छा हम समझेंगे, जितना अच्छा हम उसको क्लिनिकली अंडरस्टैंड करने की हमारी क्षमता को बढ़ाएंगे, उतना अच्छा अच्छा हम उसके सॉल्यूशंस ढूंढ ढूंढ सकते हैं। तो ये कॉन्फ्लुएंस कर रहे हैं हम। मतलब हमको ये श्रेष्ठ है, ये कनिष्ठ है, ये अच्छी है, ये बुरी है, इसमें हमको नहीं जाना है, क्योंकि ये हमारे जैसे चिकित्सकों का काम नहीं है। और हमारे से श्रेष्ठ वैद्यों के बारे में हमें बोलने की कोई पात्रता ही नहीं है, और हमको बोलना ही नहीं चाहिए। जो काम उन्होंने अच्छा किया है, जो काम हमने हमको उपयोग में लाता है, हमको यशस्विता प्रदान करता है, उसके बारे में हमको उनका ऋणी रह के इस आयुर्वेद को और अच्छा तरीके से आगे ले जाना है। ये हमारा काम है। और इसीलिए ये जो कॉन्फ्लुएंस है, ये देखा है। देखिए, मैंने इसकी ये मेरे दिमाग में कैसे आया कि मैं जब गुरुजी के पास काम करता हूँ, तो काम करता था दातार शास्त्री जी के पास मैं जब काम करता था, तो आपको पता है कि पांचवतिक चिकित्सा में बहुत कम कल्पों के साथ चिकित्सा की जाती है। हार्डली 30 40 50 कल्पों के साथ हम काम करते हैं। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि जब 1991 में मैं दातार शास्त्री जी के पास गया, तो वहां पे ना तालिसादी चूर्ण था, ना सीतोपलादी चूर्ण था, अ, और ना हम ऐसा कोई यूज करते थे, ना हिंगवाष्टक करते थे, कुछ नहीं नहीं था। चूर्ण ही नहीं, ना श्वास कुठार है, ना सूतशेखर है। मतलब ऐसे कल्प भी जो बेसिक कल्प है आयुर्वेद के, वो उनके पास नहीं थे। उनकी बात अलग है, उनका विचार अलग है, वो हम आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में भी। लेकिन जब मैंने खुद मेरी प्रैक्टिस शुरू की, और जो मेरे बाकी के सीनियर जूनियर और बाकी चीजों में समझना शुरू किया, तो ऐसा लगता है, कई बार ऐसा होता है कि हमको आयुर्वेद के ही जो बहुत सारे विचार है, जैसा कि हम पंचवतिक का विचार करते हैं, उसी तरह दोष धातु मलों का विचार होगा, धातु का विचार होगा, या शोधन चिकित्सा का विचार होगा। मतलब जो भी विचार आयुर्वेद के आचार्यों ने या वैद्यों ने अच्छे काम करके रखे हुए हैं, उसको हमें अगर हमारे पेशेंट के ठीक होने में हमको लगाना है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो उसके बाद में मैंने ये भी बहुत सारी चीजें सीखना शुरू किया, बहुत सारे वैद्यों से मैंने ये सीखा है। और वहां पर भी, जैसा 1991 में जैसा मैंने कहा आपको कि अ, आयुर्वेद के ऐसे कोई ज्यादा वैद्य भी नहीं थे, आयुर्वेद के ज्यादा हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं थे। लेकिन हम ये सुनते थे कि केरल में, खास करके कोट्टकल में, ये एक बहुत बड़ा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, वहां पे इतने ऐसे ऐसे होता है, वैसे होता है। तो उस उत्सुकता से
मतलब मैं मेरे जीवन में कम से कम 4 बार वहां पे जाके काम करके आया हूँ। केवल उत्सुकता से कि इतना अच्छा लोग काम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ सब्सटेंस होना चाहिए, है ना। तो ये सब सभी जगह से ज्ञान के प्राप्ति करने के बाद मुझको जो ये लगा कि उस समय अ, मतलब औषधि भी अच्छी तरह से उपलब्ध नहीं होती थी। पंचभूति की तो हम खुद बना लेते थे, लेकिन बाकी की क्लासिकल मेडिसिन हो या केरल की जो जो फेमस मेडिसिन है, वो भी आसानी से नहीं मिलती थी। उसी जमाने में मैंने ये सोच के किया था कि, और मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस से मैंने इसको बिठाया कि कहाँ पे क्या यूज करना चाहिए, कहाँ पे क्या चीजें अच्छी काम करती है और हमारे ट्रीटमेंट को कम समय में पेशेंट को अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। और ये सब सोच के ये मैंने इतने साल इन तीनों पद्धतियों के साथ मेरा काम किया है। भले ही मैं पांचभौतिक का मेजर उसमें मेरे मेडिसिन मेरे मेजर वो रहते हैं, लेकिन क्लासिकल मेडिसिन और ट्रेडिशनल केरला मेडिसिन ये भी मैंने बहुत सारी जगह पे उनका यूज किया है। तो ये इतने सालों के बाद मुझको ये थोड़ा डिस्कशन जो डॉक्टर मंजू और डॉक्टर ललित के साथ हुआ, तो ये उनके सामने मैंने ये एक संकल्पना उनको सामने रखी कि ये मुझको ऐसा लगता है कि मैंने ये इतना काम किया है, मतलब ऐसा मेरे अनुभव है। तो और बहुत सारे अभी मेडिसिन सभी जगह पे सभी चीजें मिल रही है। तो ये जितना हम अच्छा करेंगे, जैसा मैंने कहा कि हमारे पास किसी एक डिसीज कंडीशन के लिए एक 100% जो उपयोगी कल्प है उनका एक पूल होना चाहिए। हाँ, जैसा आप देखते हैं ना कि हम कोई भी स्पोर्ट्स की या क्रिकेट की टीम जब हम चयन करते हैं तो चयन तो करते हैं हम 11 लोगों जो जो प्रत्यक्ष फील्ड में खेलेंगे, लेकिन 5-6 लोग रिजर्व में बैठे हुए हैं। अभी आज फुटबॉल चल रहा है वर्ल्ड कप, तो रिजर्व बेंच जिसको बोलते हैं वो भी रहते हैं। तो क्या है, ये द पूल ऑफ प्लेयर्स होता है जिनमें से हमको अच्छी चीजें लेनी है। उसी तरह से एक पूल ऑफ मेडिसिन हमारे पास हो जो जिसमें हम उस रोगी की अवस्था के अनुसार उसके जो हमने निदान किया है उसकी जो संप्राप्ति लगाई है उसके अनुसार अगर हम कुछ अच्छा कर सके तो ये एक पूल आपको मैं दूंगा कि क्लासिकल आयुर्वेद के कुछ 5-6 मेडिसिन, पंचभौतिक के 5-6 मेडिसिन और केरला केरला के 5-6 मेडिसिन, ऐसे 15-20 मेडिसिन का पूल हर एक डिसीज कंडीशन में हमारे पास अवेलेबल होगा। तो आपको उसकी चिकित्सा करने के लिए उसको समझने के लिए आसानी होगी। ये ये सब ये इस सीरीज का पर्पस है। और ये क्लिनिकल इंटीग्रेशन कैसे होता है ये भी आपके सामने मैं बोलूंगा। देखिए, अभी ये तीनों जो स्ट्रीम्स है उनके अपने अपने क्या स्ट्रेंथ है या क्या किस विचार से हम करते हैं, किस विचार से करते हैं, इससे अच्छा वर्ड यह है कि हम किन चीजों को प्रधानता देते हैं। ठीक है, हम विचार तो आयुर्वेद का ही करते हैं, हम दोषों की ही विचार करते हैं, हम महाभूतों का ही विचार कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम ज्यादातर कौन सी चीजों के बारे में सोचते हैं, देखते हैं, ये हमको देखना है। क्लासिकल आयुर्वेद कैसे चलता है, वो समझता है कि दोष धातु मल मूलों में शरीरम है और स्वस्थ रखने के लिए समदोषा समाग्निश समधातु मल क्रिया ये चाहिए। तो दोष धातु मलों की साम्यता यही स्वास्थ्य है, उनमें विकृति ये विकार है। और ये कैसे होता है, ये संप्राप्ति से होता है। संप्राप्ति कैसे बनती है, संप्राप्ति रोगों के दो प्रकार होते हैं, एक निज एक आगंतु। निज रोगों की जो संप्राप्ति होती है वो ज्यादातर दो ही प्रकार की होती है। एक तो दोषों की वृद्धि या दोषों का क्षय। दोष क्षय से होने वाले व्याधि ये एक अलग सी चीज है, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन दोष वृद्धि से होने वाले व्याधि ही ज्यादा होते हैं। और
वो दोष वृद्धि की व्याधि अवस्था तक कैसे जाते हैं, तो पप्पा इकडे दिखाने आले. इसको हम षट क्रिया काल बोलते हैं। षट क्रिया काल से दोष संचय होने से भेद अवस्था तक जाते हैं व्याधि। तो ये संप्राप्ति है उसकी। और उसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, तो शोधन शमन अप्रोच जो हमारी संहिताओं में लिखा है, शोधनम शमनम चेति। और उसके लिए हम यूज करते हैं हर्बल एंड हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशंस, क्लासिकल फॉर्मुलेशंस। और उसके बाद में जब 9वीं शताब्दी में नागार्जुन आचार्य नागार्जुन ने जो रसशास्त्र को जोड़ दिया है आयुर्वेद से, तो वहां पर से ये क्लासिकल फॉर्मुलेशंस या हर्बल फॉर्मुलेशंस के साथ साथ हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशंस या केवल मिनरल फॉर्मुलेशंस, ये भी हम क्लासिकल ट्रेन में इसका हम यूज कर सकते हैं। और इसको कैसे सोचना है, ये हम क्यों इसके आधार पर, इन चीजों के आधार पर हम अपने कल्पों का चयन करते हैं। पंचभौतिक चिकित्सा में पंचमहाभूतों का विचार स्वास्थ्य और व्याधित अवस्था में होता है। पंचमहाभूतों से ही शरीर के सभी घटक बनते हैं। दोष धातु मल ये सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे। वायवाकाश धातुभ्याम वायु अग्नेयम पित्तम पृथ्वी अंबब्लैम श्लेष्मा। तो ये दोष से पीछे महाभूत है। और दोष और महाभूतों में प्राधान्यता समानता क्या है, तो वो गुण है, वो द्रव्य है। दोनों को द्रव्य का दर्जा दिया है और इसीलिए उनको उनके आश्रित गुण और कर्म बताए गए। यत्राश्रितः कर्म गुणः कारणम समवायत तद्द्रव्यम। तो महाभूतों को आयुर्वेद दर्शन ने द्रव्य माना है और इसीलिए उनको गुण कर्म प्रदान किए हैं और दोषों को भी गुण कर्म प्रदान किए हैं। तो ये जो खास करके गुण होते हैं, ये परादि गुण जो 20 गुण है, गुरुवादि गुण, सॉरी परादि नहीं, गुरुवादि 20 गुण है, वही सब चिकित्सा में महत्वपूर्ण होते हैं। और इसीलिए इनको समझना ये इंपॉर्टेंट है। मेजर एस्पेक्ट्स इन अंडरस्टैंडिंग डिसीज कंडीशंस, क्या पंचभौतिक में हम किन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं या किन चीजों को महत्व देते हैं, तो हेतु को खोजना, निदान की निश्चिति करना, कारण परंपरा का, इसका अर्थ है कि संप्राप्ति को समझने की कोशिश करना और उस संप्राप्ति में खास करके प्रकृति के बारे में सोचना, अम्लक्षार के बारे में सोचना, निसर्ग और शरीर एक है ये सिद्धांत के बारे में सोचना, ये कारण परंपरा में कॉजेटिव फैक्टर्स में आता है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है पंचभौतिक में, वो है विकल्प संप्राप्ति, अंशांश कल्पना। ये जो गुरुवादि गुण मैंने कहे, वो हम ये कहेंगे कि वात दोष प्रकोपित हुआ है, तो उससे ज्यादा अच्छा ये होता है कि वात दोष किन गुणों से प्रकोपित हुआ है, वात दोष किन रुक्ष या और शीत गुण से प्रकोपित हुआ है। ये अगर इतना हम डायग्नोसिस तक जब जाएंगे, तब हमारी चिकित्सा और आसान हो जाती है, ना कि सिर्फ वात दोष प्रकोपित हुआ ये समझ कर। तो ये जो अंशांश कल्पना है, ये पंचभौतिक का एक कंसेप्ट है, इसको महत्व दिया जाता है। उदर परीक्षा, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, और उसमें भी पीडना सत्व और शब्द नाद परीक्षा, ये पंचभौतिक का एक स्पेशल एस्पेक्ट है। और सूक्ष्म शोधन, यानी कि ये महाभूतों के गुणों के स्तर पर ये जो औषधियों के द्वारा ये शोधन, शमन, रसायन, अपुनर्भव, ये सब चीजें की जाती है। और इसीलिए पंचभौतिक चिकित्सा टीचर्स अस टू सी डिसीज थ्रू द लेंस ऑफ द पंच महाभूतास, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द बॉडी। ये हमारे शरीर के रचनात्मक और क्रियात्मक मूल घटक है पंच महाभूत। और इसीलिए इनका जितना अध्ययन हम अच्छा करेंगे, हमारे लिए अच्छा है। केरला ट्रेडिशनल मेडिसिन, देखिए ये आपको पता है कि मतलब खास करके अष्टांग हृदय, या ये इनका मेजर ग्रंथ है। अष्टांग हृदय के ऊपर जो दक्षिण भारत में
अधिक मात्रा में जो वैद्य काम करते हैं उसका बेस अष्टांग हृदय, और उसमें जो फॉर्मुलेशंस है वो बहुत सारे फॉर्मुलेशंस वो लोग बनाते हैं और यूज करते हैं। इसके अलावा वो और बहुत सारे जो लोकल ट्रेडिशंस और लोकल ग्रंथ है, जिसमें सबसे फेमस है सहस्त्र योग, आपको पता है, और भी बहुत सारे कुछ फेमस ग्रंथ हैं, लेकिन सहस्त्र योग और अष्टांग हृदय ये सबसे उनका एक बेसिक ट्रेजर है। वहां से बहुत सारे कल्प आते हैं उनके। केरलीय ट्रीटमेंट में ऑयल बेस्ड एक्सटर्नल थेरेपीज का ज्यादा उपयोग होता है, कि पिंड स्वेद है, शिरोधारा है, तक्रधारा है, बाकी के एक्सटर्नल पिचू है, तो पीड़ित चिल है, बहुत सारे आपको पता है, स्नेहन स्वेदन है। तो ये सभी चीजें उसमें आ जाते, ज्यादा से ज्यादा ऑयल बेस्ड थेरेपीज उन्होंने बताई। हर्बल डोमिनेंट मेडिसिन, वनस्पतियों का अधिक मात्रा में उपयोग होता है, और रसकल्प भी वो लोग यूज करते हैं, लेकिन कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में वो हर्बल मेडिसिन के ऊपर ही निर्भर करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि इसका मेन एम ऑफ द ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि आपको जब हम किसी भी केरलीय ट्रीटमेंट के, जो केरलीय लोग ट्रीटमेंट करते हैं केरलीय ट्रेडिशंस में, उसमें सबसे ज्यादा महत्व वो किस चीज को देते हैं, ये मैंने बहुत सारे लोगों से बात करके मुझको ये समझ में आया। मतलब ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, इट मे बी रॉन्ग, रॉन्ग नहीं हो सकता है, जो अर्ध सत्य बोलते हैं या कुछ हद तक बोलते हैं वो होगा, लेकिन उनका जो मेन कंसेप्ट है, वो विषय है, वो है स्रोतो शोधन। स्रोतस क्लियर होने चाहिए, स्रोतसों की शुद्धि करना। ये सभी उनके जो ट्रीटमेंट है, सभी उनके जो मेडिसिन है, उसका बेस मुझको ये लगता है कि स्रोतो शुद्धि वो अधिक मात्रा में उसके ऊपर ध्यान देते हैं, और उसके आधार पर चयन होता है। मुझको कई बार ऐसा लगता है कि जैसा कि आमवात के पेशेंट्स में भी वो कुछ लोग है ना, वो तैल का उपयोग करते हैं। हमको ट्रेडिशन में या एक सिद्धांत के रूप में हमको ये पता है कि आम अवस्था में तैल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अ, कई बार मैंने ऐसा देखा है कुछ अच्छे वैद्यों को उसका उपयोग करते हुए। तो तब ये होता है कि इसके पीछे का अ, अर्थ क्या है, या ये क्यों कर रहे हैं, या इससे इसको चाहिए क्या, क्या मिलता है। तो स्रोतो शोधन, स्रोतों की शुद्धि करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, आयुर्वेद का जो सबसे चिकित्सा का या सभी बातों का सबसे बड़ा जो हमारा काम है, वो यही है कि अव्याहत गतिर यस्य, वायु की गति अव्याहत होनी चाहिए। वायु की गति जब व्याहत होती है, जब उसमें कोई अवरोध होता है, तभी सभी व्याधियों की शुरुआत होती है, ये हमको पता है। और इसीलिए ये जो दोषों का 2400 घंटे जो प्रसर चलता रहता है, वो अगर हमारे स्रोतस अच्छे होंगे, वो अव्याहत होंगे, उनमें अप्रतिघात होगा, जो आकाश का गुण है अप्रतिघात, कि उसको अवरोध नहीं होना चाहिए, उनकी जो गति है उसको अनिर्बंध पद्धति से उसको चलते रहना चाहिए, तभी हमारा शरीर अच्छी तरह से काम करता है, स्वास्थ्य अवस्था में रहता है। और इसीलिए स्रोतो शोधन करना ये इम्पोर्टेंट। ये नीड क्या है, इसका इंटीग्रेशन के नीड क्या है। तो ये इंटीग्रेशन का नीड, जो जैसे मैंने कहा, ये इसको हम अलग अलग ऐसा ना सोच के, इसको हम जब कॉम्प्लीमेंट्री सोचते हैं तो उपयोग होता है। देखिए, जैसा मैंने ये ऐसे जो कल्प है,
वो मैंने कैसे और कब यूज करना या उनके बारे में देखना शुरू किया। एक सिंपल चीज मैं आपको बताता हूँ, दो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ क्लिनिक कल में, कि आजकल सबसे बड़ा जो टॉपिक है चर्चा का वो है पीसीओडी। और खास करके पीसीओडी में जो लड़कियां, युवा युवा महिलाएं या थोड़ी प्रौढ़ महिलाएं, इनमें जो पॉलिसिस्टिक ओवरीज के कारण खास करके जो उनका जो ओव्यूलेशन है वो होता नहीं है, ओवम मैच्योर होता नहीं, वो बढ़ता नहीं है, फॉलिकल्स का साइज नहीं बढ़ता है, फॉलिकल्स मैच्योर नहीं होते हैं, वो बर्स्ट नहीं, रप्चर नहीं होते हैं। तो ये सब चीजें, ये एक एक आपको स्टेजेस पता है, और उसके पीछे पीसीओडी रहता है, उसके पीछे हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है। आयुर्वेद की दृष्टि से ये इसमें दो तीन प्रकार की कंसेप्ट, दो तीन प्रकार के अप्रोचेस आपको मिलते हैं। एक तो है कि अवरोध का है, दूसरा है कि धात्वग्नि मांद्य का है। तो खास करके ये धात्वग्नि मांद्य जो है, रस धात्वग्नि और रक्त धात्वग्नि मांद्य, ये रस रक्त धात्वग्नि मांद्य जब होता है तो इसके लिए हमने जो बहुत सारी मतलब औषधियां यूज करते हैं, जैसा कि अगर, और उसका जो मेजर हमारे यहाँ सिम्टम या प्रेजेंटेशन होता है पीसीओडी का मोस्ट ऑफ द केसेस में, वो होता है कि डिलेड मेंसेस या अमेनोरिया, दो दो तीन तीन चार चार महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल आया नहीं है, ऐसा करके हमारे पास पेशेंट आते हैं। तो ये जो है, ये है, इसके लिए हम क्लासिकल मेडिसिन में हमको रजत प्रवृत्ति निवटी है, पता है। जब हम उसको यूज करने की हम कोशिश करते हैं या हमने करके देखता है कई बार, उसके बाद में पंचभौतिक का जो हमारे कंसेप्ट है, रस रक्त धात्वग्नि मांद्य का कंसेप्ट है, हेतु का कंसेप्ट है, बहुत सारे उदर परीक्षण के कंसेप्ट है। तो उसके आधार पर जो मेजर औषधियां है हमारे पास, उसमें कूनखी गुगुड़ है, उसके बाद में श्वदंष्टादि गुगुड़ है, जिंगी शारदी है, ऐसे कल्प है, पद्मक कांति है, ऐसे कल्प हमने यूज किए हैं। तो ये करने के बावजूद मुझको ऐसा लगा कि कई बार हम मेंस्ट्रुअल साइकिल लाने में सक्षम होते हैं, यशस्वी होते हैं, लेकिन वो उसका साइकिल अच्छी तरह से चलता रहे, ये मुझको कुछ पेशेंट्स में ये हो गया कि ऐसा हो नहीं रहा है, हम इतना अच्छा विचार करते। तो मुझको जो केरला ट्रेडिशन का मेडिसिन है, दशमूल जीरकाद्य ऋषि, ये इसको मैंने यूज करना शुरू किया, और मैं इतना इतनी सालों से इसका इतना अच्छा उपयोग मैं कर रहा हूँ। मतलब मैं जो हमारे क्लासिकल मेडिसिन है, जैसे कि अग्नि तुंडी वटी है, कुमारी आसव है, ये भी मैं यूज करता हूँ। उसके बाद में ये पंचवती के कूने की गुड़ है, श्वदष्टादि गुड़ है, जिंगी शारदी है, ये भी यूज करता हूँ। और दशमूल जीरका दरिष्ट जैसा कल्प यूज करता हूँ। और वो यूज करने के बाद मुझको बहुत अच्छे, ये तीनों रूट के जो औषधियां है, उसको यूज करके कई बार मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स में लेता हूँ। उसी तरह से जो मैंने अस्थि क्षय, ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस, या जो स्पॉन्डिलोसिस है, अस्थि क्षय की अवस्थाएं होती है, तो ऐसी अवस्था में जो हम जब हम क्लासिकल मेडिसिन में सोचते हैं, क्लासिकल मेडिसिन के बारे में हम बात करते हैं, तो वहाँ पे लाक्षादी गुगुड़ है, और हम पांचभौतिक में पद्म किट्ट है, चातुर्थक है, गुक्षरादि गुगुड़ है। तो ये ऐसे कल्प हम यूज करते हैं। उसके साथ साथ कोई पेशेंट में मैंने या नॉन हीलिंग फ्रैक्चर्स है, डिलेड हीलिंग फ्रैक्चर्स है, या देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ ये जो अ, बोलते हैं ना, अ, इसको जो संधि स्रवस होता है, डिसलोकेशन, कई बार डिसलोकेशन के ये होते हैं, क्योंकि वहां पे जो
अ, जो स्नायु है, शिराएं हैं, उनमें दृढ़ता, स्थिरता, पार्थिवता नहीं। तो वहां पे मैंने क्षीरबला 101 कैप्सूल, जैसे बहुत सारे जो क्लासिकल केरला के मेडिसिन है, तो ये ऐसे बहुत सारे मेडिसिन मैंने यूज की करके मैंने देखे हैं, और वो आपसे शेयर करने के लिए आ, ये सब सीरीज का आयोजन हम कर रहे हैं। तो इस सीरीज में जब हम किसी एक डिसीज या सिम्टम के बारे में बात करेंगे, तो वो कौन कौन से बारे इसकी सोचेंगे, मतलब निदान, लक्षण, उसके भेद, उसकी संप्राप्ति, चिकित्सा सूत्र। देखिए, हर एक व्याधि का चिकित्सा सूत्र संहिताओं में प्राप्त है, तो वो भी, उसकी भी चर्चा करेंगे। शोधन चिकित्सा के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि शोधन चिकित्सा में भी देखिए होता यह है कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत रहते हैं। आयुर्वेद में ऑप्शंस बहुत है, और ये एक तरफ अच्छी बात होती है, दूसरी तरफ बुरी बात होती है। बुरी बात इसलिए होती है कि उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन बढ़ जाता है, और इसीलिए हम जितना उसको नैरो मार्जिन में ला सकते हैं, उतना हम अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन शोधन में भी अच्छा क्या है इसमें, और मेरा अनुभव क्या है, ये मैं आपसे साझा करने की कोशिश करूंगा। और जो क्लासिकल आयुर्वेदा मेडिसिन है, वो उनका वर्णन, मात्रा, सेवन काल, अनुपान, और उस डिसीज या उस कंडीशन में उसका स्पेसिफिक रोल क्या है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पंचवोतिक के भी यही करूंगा। केरला ट्रेडिशनल मेडिसिन, एक्सटर्नल थेरेपीज, बाह्य चिकित्सा में बहुत बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। पथ्य यानी कि पूरा एक मॉडल, एक जो डिसीज कंडीशन है, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अब ये देखिए, ये एक उदाहरण के तौर पर मैंने ये किया हुआ है। ये आप हम जो देख रहे हैं, ये है कि हम उसको क्लासिकल में अरोचक आधमान, ये जो कंडीशन है, यानी कि टेस्टलेसनेस और आधमान, अग्निमांद्य, अजीर्ण, मतलब ये कंडीशन बाद में हम अच्छी तरह से इसको इलेबोरेट करेंगे, लेकिन मैं आपको जस्ट एक क्लिनिकल इंसाइट के लिए दे रहा हूँ। उसमें हम देखिए, चित्रकादिवटी 250 मिलीग्राम मात्रा है, एक एक समय वाली, बिफोर फूड, अपान काल में देना है। अनुपान क्या है उसका, और इसके गुण क्या है, ये कैसे काम करेगा इस अवस्था में, कि स्ट्रांग दीपन है, पाचन है, विषय को निर्हरण करता है, और एपेटाइट को क्विकली रिकवर करता है। हिंगवाष्टक चूर्ण 103 1 से 3 ग्राम विथ फूड पहले नेवाली के साथ देना है, और वो अग्नि को सुधारता है, रुचि को सुधारता है, ब्लोटिंग, आधमान कम करता है, वात का नियंत्रण करता है, और अग्निमांद्य में भी काम करता है। लशुनादि टैबलेट, ये 250 मिली है, वार्म वाटर के साथ बिफोर फूड लेने, वो दीपन पाचन है, और ये खास करके अजीर्ण, और अनन्नाभिलाषा, उदर गौरव, ऐसी स्थिति में वो ज्यादा अच्छा काम करेगा। देखिए, ये जो वर्ड्स है, ये वर्ड्स हमको ध्यान में रखते हुए पेशेंट हमको क्या बोल रहा है, ये समझ के हमको ये वर्ड्स के अनुसार ये मेडिसिन हमारे जहन में आने चाहिए। यानी कि आप पेशेंट आपको सब कुछ बताते हैं, वो कहते हैं कि सर मैं थोड़ा भी खाता हूँ ना, तो मेरा पेट डब हो जाता है, मेरा पेट भर जाता है, ऐसा लगता है। तो ये उदर जाड्य में आपको लहसुनादि ज्यादा अच्छा काम करेगा। पंचकोल चूर्ण, ये 103 ग्राम उसकी मात्रा है, बिफोर फूड देना है, वार्म वाटर के साथ। ये अग्नि दीपक है, और हल्लास को कम करता है, अरोचक को कम करता है। त्रिकटु चूर्ण, सुंठ मिरी पिंपड़ी, ये त्रिकटु है, ये अग्नि दीपन है, इम्प्रूव सलाइवेशन। देखिए, बोधक कफ का श्रवण करने में इनका उपयोग होता है। टेस्ट एंड एपेटाइट इन कफा डोमिनेंट लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको कफा डोमिनेंट मतलब कफज अरोचक जो है, यो होना है। देखिए, अरोचक जो व्याधि या लक्षण है, उसमें दो
दोष सबसे अधिक मात्रा में बिगड़े हुए हैं। नंबर 1 है प्राणवायु और नंबर 2 है बोधक कफ। तो ये दोनों से होता है। पाचक पित्त भी होता है, जब पाचक पित्त से ग्रहणी जैसा व्याधि निर्माण होता है, पाचक पित्त बिगड़ने से, तब भी आरोचक ये लक्षण होता है। तो ये सभी जगह पे हमको सोचना पड़ता है कि उसका शुरुआत कहाँ से है, संप्राप्ति कहाँ से है और कहाँ पे काम करना है हमको, किस दोष के ऊपर, दोष के किस प्रकार के ऊपर, किस गुणों के ऊपर, ये इम्पोर्टेंट है। तकरारिष्ट, ये 1530 ml देने हैं आफ्टर फूड, व्यानोदान काल में। ये ग्राही है, दीपन है, हेल्पफुल इन लो एपेटाइट विथ माइल्ड इंडाइजेशन। और जीरकारिष्ट, ये आइडियल व्हेन अनोरेक्सिया एसोसिएटेड विथ पोस्टपार्टम वीकनेस और कफा इम्बैलेंस। देखिए कि प्रसूति उत्तर अगर ये अग्निमांद्य अरोचक है तो द चॉइस ऑफ ड्रग इज जीरकारिष्ट। ठीक है। और तकरारिष्ट हमको अग्निमांद्य है और अग्नि को ये है, लेकिन उसकी मल प्रवृत्ति अच्छी है, मतलब वो कठिन नहीं है मल, या कई बार वो प्रवाहिका अतिसार जैसा है, ग्रहणी जैसा है, मुहुर्बद्धम मुहुर द्रवम है, तो वहां पे तकरारिष्ट इज द ड्रग ऑफ चॉइस। तो ये सभी चीजों को देख के हम उसको सोचना चाहिए। पंचभौतिक में हमारे पास अरोचक आद्मान में हम क्या यूज करते हैं? फलत्रिकादि अरिष्ट 10 से 20 ml सुबह 6 बजे, शाम 6 बजे उबाल के ठंडे हुए पानी के साथ। ये अग्नि को बढ़ाता है, रिमूव्स टॉक्सिन, यानी कि रेचक है, मृदु रेचक है और क्षुधा वृद्धिकर है। लघु सूचक 100 से 200 मिलीग्राम 10 बजे 2 बजे, खास करके पित्त शामक और पित्त की अम्लता और द्रवता को दूर करने वाला लघु सूचकर है। तो अगर नौजिया है, ज्यादा मतलब जिसको बोलते हैं कि हल्लास बोलते हैं, तो वहां पे ये लघु सूचकर अच्छा काम, वो शोषण करता है, शुंठी है उसमें। हरड़ू, ये एक त्रिदोष शामक, अनुलोमक, मूत्र विरेचक ऐसा द्रव्य है पंचभौतिक में यूज होने वाला, जो 100-200 मिलीग्राम में 10 बजे 2 बजे देना है। अग्नि का दीपन करेगा और पित्त के लोगों के में वो अग्नि दीपन और अनुलोमन का अच्छा काम करता है। परांग कक्षा, ये 30 से 50 मिलीग्राम एक बार उसकी मात्रा है, 10 बजे 2 बजे हनी के साथ, मधु के साथ हम देते हैं। ये अधिक अच्छा अग्निदीपन है। और देखिए रिमूव कोटिंग ऑन टंग, मतलब हम जिह्वा की परीक्षा करते हैं तो लिप्त जिह्वा है, साम जिह्वा है, अगर ऐसा दिख रहा है या पेशेंट बोलता है सर मैं कितना भी जिह्वा को साफ करता हूँ ना, वो जिह्वा साफ ही नहीं होती है, तो वहां पे ये वरांग क्षार इज द ड्रग ऑफ चॉइस। और ये केरला ट्रेडिशन में जीरकाद्य रिष्टम, ये 15 to 30 ml आफ्टर फूड है। ये डाइजेशन और एपेटाइट को इम्प्रूव करता है। और जैसा मैंने कहा प्रसूति उत्तर अच्छा ज्यादा काम करता है। तकरारिष्टम भी है, ग्राही अग्निवर्धक है, माइल्ड लूज मोशन और एसिडिटी, इसके साथ अगर ये अरोचक है तो ये वो लोग यूज करते हैं। इंदुकांतम, दीपन वातानुलोमन है, क्रॉनिक एनोरेक्सिया एंड वीकनेस, मतलब ये इंदुकांतम आपको इतनी जगह पे मिलेगा। इंदुकांतम लोग इतना अच्छा और इतना वाइड स्पेक्ट्रम यूज कर सकते हैं इंदुकांतम जैसी दवा के, ये बहुत अच्छी दवा है इंदुकांतम कषाय। हिंगू वचादि चूर्ण, ये 3 से 5 ग्राम तक मध्य में, समान काल में, मतलब खाने के बीच में देना है। और वो अरोचक, आधमान, अजीर्ण इनको दूर करता है। उसी तरह चित्रकादि वटी है, और वो कफ और आम अवस्था में चित्रक श्रेष्ठ अग्निदीपक है, चित्रक। और इसीलिए कोई भी अग्निमांद्य अरोचक इस अवस्था में चित्रक, और चित्रक के कोई ना कोई कल्प, या चित्रक जिसमें है ऐसे कोई कल्प, आप जरूर उसको आंख मूंद के यूज कर सकते हैं। लवंगादिवटी,
ये खास करके चूस कर खाने के लिए लवंगादी वटी है, चूस कर खा सकते हैं। और वो रुल्लास, आरोचक इसको दूर करेगी। और खाने के बाद अगर किसको ऐसा लगता है, जैसे मैंने कहा कि खाने के बाद पेट भरा हुआ लगता है, गैसेस लगते हैं, थोड़ा खाए तो भी पेट फूला हुआ लगता है, तो वहां पे खाने के बाद लवंगाती वटी आप उस पेशेंट को दे सकते हैं। तो इस तरह से ये हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। शोधन चिकित्सा भी मैं मेरे इनपुट्स आपको दूंगा। और ये जो मेडिसिन है हमारे पास, कौन से मेडिसिन के साथ हम अच्छा काम कर सकते हैं, पेशेंट क्या बोलता है तो हमें कौन सा मेडिसिन सूझना चाहिए, और वह कैसे अच्छा काम करता है, और संप्राप्ति के किस भंग में वो काम करता है, व्याधि के कौन से भेद में अच्छा काम करता है। तो ये सब हमको मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, जाकि हमारा जो क्लिनिकल प्रिसीजन है, वो क्लिनिकल प्रिसीजन ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो थैंक्स ऑल फॉर अटेंडिंग इन लार्ज नंबर्स, एंड थैंक्स IIS। और आई एक्सपेक्ट गुड रिस्पांस फ्रॉम योर साइड, ऐसा मैं करूंगा। और अगर आपको कुछ पूछना है या आपको कुछ जानना है, बोल सकते हैं। थैंक यू। आई रिक्वेस्ट समवन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। और आपको ये कंसेप्ट जो सर ने प्रस्तुत किया है, चिकित्सा त्रिसंगम, ये आपको कैसा लगा? क्या आपको इससे फायदा होने वाला है? प्लीज अनम्यूट करके बताइए, एक कोई भी। No, I think it's a very good sort of coming together of three types of treatments is very useful for Vaidyas, particularly where remote location like I'm practicing in the UK, and suddenly you find different symptoms and different types of things, and very difficult to source medicines at that point in time. If you have variations of medicines available, then it's going to be very useful for treatment. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Very good. थैंक यू। Are we going to Anyone hold else? this? Are we going to hold a training for this? I mean, is there a proposed course for this? Or यस डॉक्टर, सबसे पहले मैं एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करती हूँ यहाँ पे कि ये जो कंसेप्ट आज सर ने बताया है चिकित्सा त्रिसंगम का, व्हाट वी हैव थॉट इज one disease, 2 days. Okay, where we'll be seeing the basic pathology, samprapti in short, and then the treatment protocols according to the 3 different streams जो अभी सर ने हमें बताया है ना। ये वेबिनार हमने स्पेशली डिजाइन किया है आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स एंड कंसल्टेंट्स के लिए, एंड फ्रेश BMS ग्रेजुएट्स के लिए। अगर आपको डिसीज की बेसिक पैथोलॉजी संप्राप्ति समझ में आती है, और आप यह जानना चाहते हो कि इस पेशेंट में एग्जैक्टली कौन सी चिकित्सा करनी चाहिए, देन दिस वेबिनार इज फॉर यू। हम हर डिसीज की संप्राप्ति को विल गो डिसीज वाइज, वी विल डिस्कस द संप्राप्ति वेरी ब्रीफली, क्योंकि बिना डिसीज को समझे ट्रीटमेंट तो हो नहीं सकता है ना। लेकिन हमारा मेन फोकस होगा चिकित्सा के ऊपर। आखिरी में हम कोई भी कोर्स करते हैं या कोई भी वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस जब हम अटेंड करते हैं या एनरोल किसी कोर्स में करते हैं, तो हमारा लास्ट में एक्सपेक्टेशन यही रहता है कि कल से जब मैं पेशेंट क्लिनिक में देखूं इसके ऊपर, कॉन्फिडेंटली पेशेंट्स को मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर पाऊं। दैट इज अल्टीमेट गोल वी अटेंड द डिफरेंट कोर्सेज। इसी थॉट को ध्यान में रखते हुए और डॉक्टर्स की बिजी को भी हुए, हमने इस कोर्स का फॉर्मेट भी बहुत ही सिंपल रखा है, नॉट वेरी एलॉबरेटेड, और बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखा है। 1 disease 2 days, एंड द रजिस्ट्रेशन चार्जेस इज वेरी मिनिमम, ओनली ₹300, ताकि मैक्सिमम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स इसका बेनिफिट ले सके। इस कोर्स की असली वैल्यू जो है, इट इज नॉट जस्ट लर्निंग अबाउट द मेडिसिन। आप सीखेंगे कि कब दिस
classical Ayurvedic medicine. Can't hear मैम, आपकी आवाज ब्रोक हुई है। Has known about this pros and cons of each and every stream for that particular disease. So the real art is knowing the right approach for the right patient at the right time and the right stage of disease. और यही है डॉक्टर अनिरुद्ध कुलकर्णी सर का ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, त्रिसंगम चिकित्सा का एसेंस। सर अपने 34+ ईयर्स का क्लिनिकल एक्सपीरियंस का सार आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वो बताएंगे कि किस कंडीशन में कौन सी चिकित्सा सबसे इफेक्टिव होती है और उसके पीछे का क्लिनिकल रीजनिंग भी समझाएंगे। ये सिर्फ थियरी नहीं है, कंप्लीटली एक्सपीरियंस बेस्ड प्रैक्टिकल क्लिनिकल प्रिस्क्राइबिंग कोर्स है ये। और सर ने हमें अभी 20+ कॉमन डिसीजेस दिए हैं जो हम करने वाले हैं। लाइक वीकली वंस वी विल बी अरेंजिंग द 2 days क्लास। और अगर आपका सपोर्ट और रिस्पॉन्स अच्छा मिलता रहे देन वी कैन गो अहेड विद दिस सीरीज विद मोर डिसीजेस ऑल्सो लेटर ऑन। लेकिन पहले हमने 20 कॉमन डिसीजेस हम आपके सामने लेके आने वाले हैं। तो मेरी सभी डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट है, इस अपॉर्चुनिटी का पूरा बेनिफिट लीजिए। इन्वेस्टमेंट सिर्फ ₹300 है, लेकिन जो क्लिनिकल कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिकल नॉलेज आप लेकर जाएंगे इस कोर्स से, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा रहने वाली है। We look forward for learning together in this beautiful journey of Trisangam Chikitsa. If you have any more doubts, please let us. Sir, Is there recorded Sir. sessions available if we miss the session? Yes, sir. Recordings will be also available. Dates and timing we will mention soon in the WhatsApp group. Okay. Sir, names Namaste, of the sir. diseases काही तुम्ही थोडे बहुत सांगू शकता जे Yes, आपण sir. बघणार आहोत? हाँ, वो बहुत सारे डिसीजेस है जिसमें अग्निमांद्य है, अजीर्ण है, आमवात है, और उसके बाद में ग्रहणी है। बहुत सारे हम करेंगे। या फिर आपसे भी आएंगे तो भी आप ऑर्गेनाइजर्स को बोलेंगे, वो भी हम करेंगे। मोस्टली मेरे पास 20 to 30 तो मेरे पास अभी जो हम रोजमर्रा की प्रैक्टिस में देखते हैं, तो वो है शीत पित्त है, अम्ल पित्त है, बहुत सारे अर्श है। तो सो मेनी डिसीज कंडीशंस है जो हमको यूज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेडिसिन होने चाहिए। और जो खास करके आयुर्वेद के पेशेंट्स के स्किन डिसीज ऐसा व्याधि है, बहुत सारे स्किन डिसीज है कि जो मॉडर्न साइंस में वो सिर्फ उसको मैनेज कर सकते हैं, वो क्योर नहीं होते हैं, तो वो हमारे पास आते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये 15-20 मेडिसिन के पूल से भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो मेडिसिन है, जो डिसीज कंडीशन है, जो आयुर्वेद की दृष्टि से हम स्ट्रांग है जिसमें, तो वो ज्यादा हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे इसमें पंचभौतिक में कुछ 20 मेडिसिन है, ऐसे त्रिदोष में बहुत सारी मेडिसिन होगी, ऐसे कैरेलिया मेडिसिन बहुत ज़्यादा होगा, ऐसे सभी डिसीज के लिए बहुत सारी मेडिसिन नहीं हो जाएगी? नहीं, सभी डिसीज के लिए बहुत सारी मेडिसिन हो जाएगी, लेकिन जैसा मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं, आपको अभी क्या करना है कि आपको जब आप अपने प्रैक्टिस की शुरुआत में होते हैं या आपको कोई नई चीज आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिलती है, तो फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्लोर इट फुल्ली। और जब आप इसको अच्छी तरह से यूज करोगे, सभी पेशेंट्स में सभी चीजों में यूज करके देखोगे, तो आपको समझ में आता है कि ये एक्चुअली किस अवस्था में, किस स्टेज में इसका ज्यादा वैल्यू है। तो इस तरह से मैं आपको ऐसे मेडिसिन बता रहा हूँ जो इजीली अवेलेबल होंगे मार्केट में, और उसमें से आपको समझना है कि उसमें आप कौन सा आपके पास अवेलेबल है और आप कैसा कर सकते हैं। ये ज्यादा समझाने की मैं कोशिश करूंगा मेरे अनुभव के हिसाब से। सर, जैसे अभी पंचभौत, अभी अरोचक और इसका आत्मान का आपने जो अभी एग्जांपल दिया,
यस उसमें जैसे पंचभौतिक भी मेडिसिन है, त्रिदोषक मेडिसिन में भी है, और केरलीय मेडिसिन भी है। तो एक पेशेंट में पंचभौतिक में से एक दो मेडिसिन, त्रिदोषी में से एक दो मेडिसिन, और केरलीय में से एक दो मेडिसिन ऐसे प्रिस्क्राइब करना है कि या फिर कोई भी एक? नहीं नहीं, आपको जो अच्छा लगे, आपको जो ठीक लगे वो आपको करना है, मतलब उस पेशेंट के हिसाब से। लेकिन मैं आपको ये ऑप्शन दे रहा हूँ। क्या हो रहा है, ऑप्शंस नहीं रहते हैं ना तो प्रॉब्लम होता है। और हमको कई बार ऑप्शंस के बारे में पता नहीं होता है कि इस अवस्था में, इस ट्रेडिशन में ये अच्छा मेडिसिन है कि नहीं। मुझको भी पता है, मैंने जैसा मैंने खुद को बताया, मैंने मेरा अनुभव बताया कि जब मैं पंचभौतिक का स्टूडेंट हूँ तो मैं पंचभौतिक मेडिसिन तो मैं सीखा हूँ अच्छा। लेकिन ये जब नौबत आती है कि क्लासिकल में ये अगर कंडीशन में कौन सा मेडिसिन है, या समझो आप मेरा कोई पेशेंट है वो दूसरे गांव का, दूसरे स्टेट में बैठा हुआ है कई बार, और उसको कुछ मुझको अचानक कुछ बताना है, तो जो वहां पे उपलब्ध होगा वो हम हमारे पास उसकी जानकारी होनी चाहिए, हमको पता होना चाहिए। तो इस दृष्टि से भी मैंने मुझको ये जैसे जैसी कंडीशंस निर्माण होती है, तो हमको हमारे पास ऐसे पूल ऑफ मेडिसिन चाहिए कि हमको जो जहाँ पे मिले, हमारे प्रैक्टिस में मिले, या कहीं पर हम जा बैठे हैं या हम किसी को बता रहे हैं तो वहां पर भी वो अवेलेबल हो, ये बताना है। मेरा यहाँ से ये जो मेरा आपके सामने जो काम है वो है ऑप्शंस को रखना, और उन ऑप्शन को कैसे और कहाँ पे आप यूज कर सकते हैं इसके बारे में आपको ट्रेन करना। ये मेरी विचार है। आपका काम है कि उसमें से क्या चूज करना है, कैसे चूज करना है, आपके लिए क्या बेस्ट है, आपके पेशेंट के लिए क्या बेस्ट। No, very good point. I think I have used a combination of Panchabhotik Chikitsa and Kerala medicines. I find where Panchabhotik Chikitsa takes a longer time, combination of Kerala Ayurveda medicines with Panchabhotik Chikitsa has given me faster results. So it's a tremendous advantage to know different traditions and applying at the correct time and the correct issue, because sometimes results don't come. For example, if there is padada, if there is any a pain related this symptom, Panchabhati chikitsa at times may takes more time. But if you combine that with Kerala Ayurveda, any other tradition, the results will always be faster. That's my experience. I mean, I'm not saying that this is the best way, but this is what I have experienced so far. गुड इवनिंग सर। यस सर, जैसे आपने मेडिसिन्स बताई अरोचक और उसकी अजीर्ण की, जो कीमो के पेशेंट्स है सर, उनमें सलाइवा नहीं बनता है और उनको नौजिया होता है, तो उसमें सेफली कौन सी इनमें से यूज कर सकते हैं? नहीं, अभी अभी ये तो एक इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो जब आप आरोचक और इसकी बात करेंगे तो मैं अच्छा आपको बता सकता हूँ। लेकिन ये बहुत सारा ये इसमें जाना पड़ेगा आप। पर इट इज सेफ टू यूज आयुर्वेदा? यस यस इट इज, यस यू कैन डेफिनेटली यूज आयुर्वेदा इन कीमो पेशेंट, जिनकी कीमो चल रही है उसमें आप आयुर्वेदा उसके साथ कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं बहुत सारे पेशेंट्स में करता हूँ। और जैसा आपने कहा कि ये, क्योंकि ये सलाइवेशन कम हो जाता है, ये कम होता है, तो उसमें आपको ये जो है ना, वो जो द्रव कल्प है, जैसा कि जीरक आदि रिष्ट है वगैरह, उसका आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। राइट सर, थैंक यू। So, dear delegates, we will come up with the new announcement in the WhatsApp group with the name of the disease, which we'll be starting with, कौन से डे को हम रखने वाले हैं, and the time of the lecture. Of course, the recordings will be there for you. So, if all the doubts are cleared, we will end the recording. स्किन डिसीज में भी क्या कवर करेंगे हम? सो मैम, जैसे सर ने कहा शीत पित्त एक है, और सर आप बता सकते हो और क्या हम देखने वाले? हम नहीं, कुष्ठ के ऊपर हम एक अच्छा सेशन करेंगे। जो कुष्ठ के जो बहुत सारे आजकल जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें ज्यादा आती है हमारे प्रैक्टिस में,
नंबर 1 है कि फंगल इन्फेक्शंस, दूसरा है कि सोरियासिस, मतलब तीसरा है कि ये जो डर्मेटाइटिस है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जैसे ये है, we will हम उसको देखेंगे. I will talk about it. No issues. सर चिकित्सा के बाद मीन्स कभी कभी रिजल्ट मिल जाते हैं, हम लोग उनको पथ्य और ये सब बताते हैं, पर फिर भी कई कई डिसीज में ना पुनर्भव चिकित्सा की जरूरत पड़ती है, तो और वो कितने दिन तक और कैसी ये भी बताया जाए. हाँ, मैं बताऊंगा आपको. ये पेशेंट एक बार ठीक होने के बाद उसको हमको क्या एडवाइस करना चाहिए, क्या दवाई देनी चाहिए, उसका अपपुनर्भव टालने के लिए हम क्या कोशिश कर सकते हैं, ये सभी चीजें मैं आपसे बात करूँ. स्त्री रोग तो हम कवर करेंगे. स्त्री रोगों में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे कंडीशंस है जो हमारे ओपीडी में आते हैं. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू टॉक ऑन दिस. देखिए, Okay, sir. केस डिस्कशन में मतलब केस डिस्कशन ज्यादा नहीं करना चाहूंगा. मतलब इस सीरीज में देखिए, मेरा उद्देश्य केस डिस्कशन, केस टू केस चर्चा करने का नहीं हो रहेगा, क्योंकि वो एक अलग बात है. क्योंकि हमारे पास कोई, और खास करके जैसा आज आप लोग पूछ रहे हैं, या कोई भी पूछता है, मतलब आपको मैं नहीं कहूंगा कि आप डिसीज का नाम लेके आप मेडिसिन पूछोगे, तो ये इतना सहज और सरल नहीं होता है केस टू केस में. तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो डिसीजेस आते हैं, वो डिसीजेस समझेंगे कैसे, और उन डिसीजन को समझने के बाद उसमें जो चिकित्सा करनी है, उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण ड्रग्स हमारे पास उपलब्ध है. तो ये इसका एक बेसिक आइडिया है इस सीरीज का. थैंक यू. Yes, sir. Thank you, everyone. Thank you, dear all the delegates. If you want to do the registration, my contact number is already in the chat box. You can connect with me. I'll share you the link. Once again, I'll share the contact number. पेन मैनेजमेंट रिलेटेड टू पेन मैनेजमेंट भी रहेगा सर, है ना? राइट. हाँ, राइट राइट, वो तो रहेगा. एंड डेज टाइमिंग everything I'll update in the WhatsApp group, dear all doctors. यस. So we will end the meeting. थैंक यू. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you everyone for your interest in this novel concept. I hope we will meet again and share and learn our knowledge. Thank you very much. Thank you. Yes, sir.